So, hello, hi everyone. This is Satakshi, and I'm back with another unit that is your UX research, user research. So, we in last three units we have covered that what is the process of designing a user-centered software design, how to create a user-centered design, and how we will define it. We learned all the process. Now it's time to understand how we will understand the user, understanding the users and their context. See, every user has different goals, different context, and different environment. Like if you are a student, you have different goals, different context of user, and different environment. If you are a lawyer, you have different context, different use of the product. You have a different requirements from the product, right? So uh, that's why this unit is very very must to understand how how our product is gonna interact in the real world. See, this is very important because if you understand why this you research basically for like for someone if you are developing a e-commerce store like a food store. Okay, so what we need to understand key, it should be easy, it should be easy to understand for the user. Now we will understand that how we will research that which type of user, what are their goals, and what environment do they pursue in that while using our product, what environment they pursue, and what are their thinking, what are the povs with our product, our project product, whatever you say. All right. So user research, user research is a systematic study of the target users. To sell anything to anyone, you need to understand first what the user is, right? So user research helps in that only. So user research has these common key components like understanding the user, user goals, context of use, environment. All right, so as I already told you, who the users are, their behaviors, their needs, and their motivations. If you are making some app, kind of your motivational app, or food delivery is very basic. If you are making a like a clothing brand app, all right, so if you have a different categories, you have very varieties for the kids, for the formals, for the men's, for the women's. So it's a very vast category, so you have to cater all the audience. So you need a perspective from all the fields, like the people who like to wear the formals, how they like to pursue the UI of that, of the interface of our product. All right, so I think I should speak in Hindi because that will be very that will be better. Yes. Okay. Hmm. तो जब हमें ये चीजें समझ में आएंगी ना, तो और कंटेक्स्ट ऑफ यूज क्या क्या है एक यूजर का, तो जैसे हाँ, जैसे हम हमारे कॉलेज की कोई वेबसाइट ले लेते हैं, तो हम टीचर्स का अलग इंटरफेस होता है, एडमिन्स का अलग इंटरफेस होता है, कोई भी फूड डिलीवरी वेबसाइट भी है तो उसमें एडमिन्स का कंटेक्स्ट ऑफ यूज अलग है, ठीक है। अब कंटेक्स्ट ऑफ यूज सेम ये प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट एजेस, इनको कैटर करने के लिए हमें यूजर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम बनाते हैं पर्सोनास, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है हमें क्यों यूजर्स को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। देखो, अगर आपको इससे डिटेल में पढ़ना है ना, बहुत डिटेल्स में बनाया है, तो आपको सिर्फ जाके ना ये वाला लिंक लिखना है यहाँ पे। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है, अपने क्रोम पर जाना है, आपको लिखना है यूसीडी यूजर यूजर सेंट्रिक डिजाइन, यूसीडी ग्रीन डॉट वर्सल डॉट ऐप, ठीक है। इतना लिखोगे आप, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। समझ में आया? तो ठीक है, क्योंकि ये डिप्लॉयड है और आप सारे यूनिट्स एक ही लिंक पे आपको मिल जाएंगे। मैं चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगी। ओके, तो हमने यूजर गोल्स, अब हमें यूजर्स पता चल गए, ठीक है, हमारे कौन कौन से यूजर्स है, हमारे टारगेट ऑडियंस। उसके बाद में हमें समझना पड़ेगा कि हर यूजर का गोल भी डिफरेंट होता है। लाइक स्टूडेंट इज देयर टू स्टडी, टीचर is there to earn or sell something. Okay, so every user has some different goals, तो हमें उसके experience goals, how user want to feel while using the product,
ठीक है, तो दे वांट टू फील द कॉन्फिडेंट, एम्पावर्ड, एंटरटेन्ड, व्हाटएवर इट इज, है ना, लाइक नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ वेबसाइट्स में ये चीज एंटरटेनमेंट उसके लिए है। ठीक है, एंड गोल्स क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, टू कंप्लीट अ परचेज और लर्न अ न्यू स्किल और कनेक्ट विद अदर्स। जैसे कोई फ्रेंडशिप एप्स रहते हैं, तो उसमें उनका एंड गोल है कि दे वांट टू कनेक्ट विद समवन। सो we need to understand that end goals, life goals, मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। लाइक कोई एप्लीकेशन है विच इज योर इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश प्रैक्टिसिंग एप्लीकेशन, सो दे वांट, उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि दे वांट बिल्ड, दे वांट बिल्ड गेन द एफिशिएंसी फ्लुएंसी इन द इंग्लिश। ओके, सो ये उनका गोल है। ठीक है, और उधर भी टीचर्स भी होंगे, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन भी दिया है उसमें, डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस गोल्स एंड गोल्स, लाइफ गोल्स। ठीक है, अभी आप बता पाओगे फ्रॉम अ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। चलो ये आप चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ यूज, देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप you need to understand, to scale any website, any page, any product, you need to understand how frequently people use your product, how much time they spend on your product, and in what locations they are based, and how they interact, what it triggers them to go to the product। like if you say uh, Zomato, ठीक है, जोमेटो लोग कब यूज करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है, ऑफ कोर्स, बट व्हाट ट्रिगर्स देम, उनको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको भूख लग रही है रात में 12 बजे। तो इस तरह के जब नोटिफिकेशन आएंगे ना, तो आपको भूख नहीं भी लगेगी तो भी आप सोचोगे यार खा लेते हैं, चलो ऑर्डर कर देते हैं। तो इस तरह से कंपनीज वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, so why, uh, why, when, where, and how the users are interacting with our software. All right. In the morning time, during the day work, or in the emergency, like if you are booking a cabs, so आप बहुत emergency में करते हो या कैसे करते हो आप, usually casually भी cab ride book करते हो। It's like that. Okay. So hope you got my point. Moving next, environment of user. So this is again very important, because how the users interact with the software depends on their environment। ठीक है, like if some app like social media app, why do you use it? When you are alone, you feel bored, ठीक है, you feel bored, so you start scrolling for some entertainment, ठीक है, or to learn something, whatever। So that's like that। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट्स, okay, please check these exam questions, and I'm thinking to make a separate video for all the chapters of important exam questions। So ठीक है, अभी हमें context inquiry, मतलब context मतलब back, why the user is using that, यूजिंग आवर प्रोडक्ट। सो उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हम ये 4 की प्रिंसिपल इसमें यूज करते हैं। गो टू द यूजर्स वर्क प्लेस, ठीक है, पार्टनरशिप कर लो यूजर को, यूजर्स के साथ में, ताकि हम उनका वर्क समझ पाए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, डेवलप अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग विद द यूजर्स, फोकस करो कि वो किस तरह से अपना अटेंशन स्पैन है, उनका डिजाइन गोल्स क्या है। मतलब डिजाइन करने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि वी जस्ट लर्न द सॉफ्टवेयर, कि फिग्मा पे हमें डिजाइन करना है, और वी विल जस्ट गो टू द डिजाइन एंड कंटिन्यू started that, here I want this tab, here I want this button। So it's not like that, we need to understand the user from the core, right? So we plan how this works, how the process is, the plan, we plan, observe, interview, interpret it, and document। In the last video I told you how important is to document it, so if you have not watched that video, please go to it, the video। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी, ठीक है, तो ये एक बस एग्जांपल है कि आप रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन कैसे बना सकते हो। ठीक है, यू नीड द नेम, द लोकेशंस, ऑब्जर्वेशंस उनका क्या था, अच्छा, यूजर स्ट्रगल टू फाइंड शॉपिंग ऑप्शंस, ओके, spend 3 minutes looking for a discount code। So see how the you it's taken from the user, you can create the new session, and like that। Okay, so you got the key insights, checkout process too complex, need clearly visual hierarchy। So this was the just the example, you might get the question in the exam, that create one
example for the contextual inquiry. So it's like that. ठीक है. In the next video में next आई हैव क्रिएटेड द पर्सोना यूजर इंटरव्यू. ठीक है. अब यूजर इंटरव्यू जब हम यूजर को समझना है तो हमें यूजर से कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछना है जिसका आंसर वो यस और नो में दे दे कि डू यू लाइक अ प्रोडक्ट, यस, नो. नो 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 नो, वी डोंट वांट ऐसे स्ट्रक्चर्ड आंसर्स. यस नो में तो बिल्कुल भी नहीं. और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछना है जिसमें जो एकदम ऑब्वियस हो. ठीक है, जो कोई गूगल करके भी बता सकता है. ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना है हमें. ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखने हैं ताकि यूजर्स अगर यूजर अपना पर्सपेक्टिव रख पाए कि अगर इफ दे were to develop this, they will design it like this, not like this. सो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखने हैं तो वो कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेम ऑर्डर. सो इट्स नॉट गुड बट इट इज बेस्ट फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा लार्ज सैम्पल्स. इसके लिए सही होते हैं. ठीक है. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज मतलब मिक्स ऑफ बोथ, फ्लेक्सिबल टू एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स but strict to the ones that we have already defined. So it's like that. Unstructured interviews are open-ended. Like, tell me whatever you like about the our product, what things you find difficult, and like that. Okay. Exploratory research, discovering unknowns. हाँ. और इससे ये भी एक फायदा होता है कि हमें जो चीजें नहीं पता है कि we might have in the structured interviews we might miss some points. Yeah, that's completely normal. So uh, okay, here are the best practices. What should we do when taking the interview with the users? So here are the do's. Keep the questions open-ended. Listen actively without interpreting. Okay, ask follow-up questions. Like if the user says like I liked the this feature, I liked the most. Something like how can I use it in the new skill field? So keep the questions ended to the user कि हमें यूजर को समझना है ना. जितना ज्यादा से ज्यादा यूजर बोलेगा हम उससे सुनेंगे तभी तो हमें पता चला कि हाँ यूजर क्या चाहता है. ठीक है. सो इट्स लाइक दैट. रिकॉर्ड सेशंस, टेक डिटेल नोट्स. ठीक है, ये चीजें हैं. एंड दीज आर द डोंट्स. प्लीज go through the don'ts also. So quantitative analysis of yeah, UX. ठीक है. Products to identify strength. See, it is very important to analyze the competitors' products as well. If we make something completely different that is not even similar to our competitors, so there might be chances we make the cluttered users. We clutter our audience because see, if you are making a food delivery app, you need to understand the Swiggy also, their services, their UI, their weakness, their strength. है ना. कॉम्पिटिटर से ही तो हम समझेंगे कि हम कैसे उनसे आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. तो हम कैसे देख सकते हैं उनका विजुअल डिजाइन एनालाइज कर सकते हैं. हम उनके फीचर्स वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिक क्या है उनके पास में, और हम क्या यूनिक दे सकते हैं. उससे हमें ये पता चलेगा. नेविगेशन उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मेन्यूज उसमें मतलब जो भी उनके नेविगेशन वो किस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया है, उनका वे ऑफ प्रेजेंटिंग दोज नेविगेशंस को क्या है. ठीक है. यूजर एक्सपीरियंस फ्लोज कैसे है, इंटरैक्ट कैसे कर रहा है यूजर उनके प्रोडक्ट के साथ में. ठीक है. और कंटेंट का टोन, जैसे कंटेंट राइटिंग अगर आपने कभी किया होगा तो कंटेंट का टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर जैसे फॉर्मल ईमेल्स हमें लिखने हैं, हम कैसे लिखेंगे डियर सर और दिस दैट और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दिस दैट. बट if you are like inviting someone, you will write in the informal way. Same goes for if you have ever checked the notifications from the Zomato. I really like the content. So yeah, performance भी काफी मैं as I told you many times that performance is very important. Not every user can wait for the complete loading of your page. So yeah, performance. So we can create a matrix based on our product and the competitor's product. So we'll rate how our product, how much the user will rate our product. How many competitors. So
हमें इससे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि अच्छा दूसरों को, जैसे इस कॉम्पिटिटर का जो मोबाइल ऐप है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, हमारे मोबाइल ऐप से भी इनका मोबाइल ऐप अच्छा है। तो वी नीड टू स्टडी कि इनके मोबाइल ऐप में ऐसा क्या है जो इस यूज़र्स को अच्छा लग रहा है, ठीक है? और इनसे हमें वीकनेस भी पता चल जाएगी कि अच्छा यूज़र ऑनबोर्डिंग का इतना इनका वीक क्यों है और हमारा इनसे बेटर है और इनसे थोड़ा लेस है, तो हम कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और थ्रेड्स भी पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटर ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो हमें कुछ सिनेरियोज लेने हैं, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ों को और समझ पाएँ, गोल्स, एक्शंस, इवेंट्स, ये सारे चीज़ों से मतलब वो कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। मतलब देयर कैन बी मल्टीपल मल्टीपल सिनेरियोज जिससे यूजर, चलो अभी अपन पर्सोना देखेंगे ना। ये यहाँ पे दिया, देखो सेटिंग इन्हें बताया है कि मंडे मॉर्निंग है, कारा इज कम्यूटिंग टू वर्क ऑन सबवे। ओके, ठीक है, इनका गोल जो भी है और ये चाहते हैं कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं 9 बजे, तो उनको मतलब गरम ब्रेकफास्ट ऐसे मिल जाए, ऐसा है इनका, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना शेड्यूल कर दिया, लोग के वो ने ऑफिस पहुंचने के पहले उनका जो पेमेंट है वो कंप्लीट करके और फिर शेड्यूल कर दिया, और उनका जो वो है, उनका ऑर्डर जो है वो 9:05 पे रिसीव हो गया। सो इट्स हॉट एंड शी रीच द ऑफिस, so it's like that. So with the help of this creating a scenario, we can understand like how we can improve our schedules. So that. All right, persona. There are multiple techniques to make a persona. Okay, but why it is important to create the, see, personas are not the real user. We take the reference from the many users interviews and all that. So we create a functional users, okay, that represent multiple scenarios के demographics, goals, behaviors, pain points, हम ताकि हम 4 से 5 persona में बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट यूजर्स का हमें पर्सपेक्टिव हम बता पाए, इसलिए हम ये बनाते हैं persona। ठीक है, चलो अभी डायरेक्टली हम चलते हैं कि पर्सोना दिखता कैसे, या सैंपल पर्सोना ये मैं दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक कोई टेक सेवी गाय है जिसका नाम है टॉम, ठीक है, उनका एज है 32, उनका ऑक्यूपेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपर, उनका लोकेशन इंडिया नहीं है, उनका लोकेशन है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, डेमोग्राफिक्स क्या होता है उनके, काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा दे सकते हैं। ठीक है, वो मैरिड है, उनके चिल्ड्रन नहीं है, वो अर्बन अपार्टमेंट में रहते हैं, उनका एनुअल इनकम इतना है, ठीक है। उनका गोल क्या है, मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, स्टे अपडेटेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, ये उनका गोल है, ठीक है। बिहेवियर्स उनके, चलो ये पढ़ लेते हैं, पेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फ्रस्ट्रेटेड बाय स्लो लोडिंग एप्लीकेशंस, मैं भी होती हूँ, मैं भी यही फ्रस्ट्रेटेड ही होती हूँ यार, उसमें क्या है ना? तो हमने ये बहुत सारे यूजर्स का प्रॉब्लम होगा, तो हमने इनके इसमें भी अपन ने नोट कर लिया कि ऑन द बिहाफ ऑफ 100 यूजर्स हमें ये पता चला है कि ये कॉमन कॉमन पेन पॉइंट है, तो हमने इस पर्सोना में लिख दिया, ठीक है। डिसलाइक्स अननेसेसरी स्टेप्स टू फॉलो एंड अनॉयड बाय इंट्रूसिव नोटिफिकेशन, बहुत सारे नोटिफिकेशन से अनॉयड हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहना चाहते हैं, इफ एन ऐप कांट डू इट इन 3 clicks, आई एम फाइंडिंग अ बेटर सोल्यूशन। ओके, सो इट्स लाइक दैट कि पर्सोना हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो बस एक आइडिया के लिए था, ठीक है। क्रिएटिंग इफेक्टिव पर्सोनाज, अब जितना अच्छा हमारा पर्सोना होगा ना, हम उतना अच्छा समझ पाएंगे कि मतलब हमें सिर्फ 3 से 4 4 5 पर्सोना हमें चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे इंटरव्यूज लेने के बाद में 4 5 पर्सोनाज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और वो बेस्ट पर्सोना हम कैसे निकाल सकते हैं, बाई कंडक्टिंग अ रिसर्च, ठीक है। कंडक्टिंग अ रिसर्च हम कैसे करते हैं वो हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, एज आई टोल्ड यू कि कॉमन बिहेवियर्स हमें देखना है, कॉमन गोल्स, कॉमन पेन पॉइंट्स, ठीक है, क्या है बहुत सारे यूजर्स में, वो कॉमन चीजें हमें देखना है, ठीक है। जो एक दो को थोड़ा अजीब लग रहा है, इट्स नॉट कॉमन, इट्स नॉट इवन मैंडेटरी टू माइंड, राइट। ग्रुप सिमिलर यूजर्स, और जो सिमिलर यूजर्स है लाइक कुछ यूजर्स है जिन्हें डार्क थीम पसंद है, कुछ यूजर्स हैं जिन्हें लाइट थीम पसंद है, तो इस तरह से क्लस्टर यूजर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू सेगमेंट्स। लाइक क्रिएट पर्सोना प्रोफाइल्स, डेवलप 3 5 डिटेल्ड पर्सोना रिप्रेजेंटिंग ईच सेगमेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे सिमिलर कर दिया, कुछ सेगमेंट्स में यूजर्स को वो कर दिया, और फिर उन्हीं सेगमेंट से 3 से 5 अपन ने पर्सोना बना दिया, ठीक है। ये पर्सोनास फिक्शनल है, दीज आर नॉट द रियल यूजर्स, ओके। फिर इन्हें
रिव्यू किया विद स्टेक होल्डर्स और रियल यूजर्स, और मतलब स्टेक होल्डर से हमने बताया कि हमने इतने रिसर्च के बाद में हमें ये पता चला है, ये कॉमन सी चीज़ें पता चली है, वो हमें स्टेक होल्डर से कुछ भी फाइनलाइज करने से पहले स्टेक होल्डर्स और रियल यूजर से तो कंफर्म करना ही पड़ेगा, राइट। और फिर उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके और जो भी फीडबैक आएगा उसे ट्रेक करेंगे और अपनी डिज़ाइन डिज़ाइन के टाइम पे उसे डिसीजंस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, होप यू गॉट माय पॉइंट, यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट मी चेक इफ द रिकॉर्डिंग और नॉट।